संविधान में 1670 का आउट का है, हड्डी से लेकर लगा ना सब तोड़ दो। बॉम्बे का नया बाप मरिया सुरवे। क्या मैं मनिया सुरवे की गैंग वालों को मंच पे बुला सकता हूँ? अनु मलिक जी प्लीज। दोस्तों कैसे लगा मरिया सुरवे? सुना नहीं लगा? जॉन एक बार फिर से हो जाए, बॉम्बे का बाप मरिया सुरवे हो जाए। अरे मजा नहीं आया, हो जाए। सब लोग चिल्लाएंगे मेरे साथ। बॉम्बे का नया बाप मरिया सुरवे। Alright, media, ladies and gentlemen, हमारे पास यहाँ पर we've got the stars of Shootout at Wadala. We're open for Q&A, so I would request you all to please take a seat. So let's begin. One of 4.8 FM. Hi, how are you doing? Fit fine. ये बताइए कि इस अवतार में आप आए हैं तो अभी कितनी गर्मी है आपके अंदर और किन किन लोगों का खात्मा करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे? क्या बताओ अभी। पहले तो हम बहुत ही एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर। पहली बार मैं जॉन एब्राहम को छोड़ के आया हूँ। लोग सिर्फ मनिया सुरवे को याद रखेंगे, तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ। ये फिल्म हमने बहुत मेहनत से बनाई और कोशिश यही है कि आप लोग को भी पसंद आए। खुदा की शुक्र से आप लोग को पसंद आएगी ये पिक्चर। किन किन को मारना चाहता हूँ, किसी को नहीं मारना चाहता हूँ। ऑडियंस को सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के साथ मारना चाहता हूँ बस। अनु जी आपसे एक सवाल है कि एक गाना आया था आला आला बर्फी और एक ये बोलने वाला एक्ट करने वाला मान्या आया है, मनिया सुरवे जी जी। तो जब आपको ये गीत दिया गया है, इस तरीके का गीत बनाने के लिए कहा गया, तो आप किस तरीके से प्रिपेयर थे? क्योंकि आला वर्ड ऑलरेडी यूज हो चुका था। आला तो सबसे पहले बहुत सालों से ये वर्ड, इट्स अ मराठी वर्ड। एक्चुअली जब ये गाना बन रहा था, संजय गुप्ता साहब ने मुझे वो सीन दिखाया था व्हेन मनिया इज कमिंग आउट, हैंगिंग आउट ऑफ द बस, और मुझे बोला अनु आई वांट समथिंग हियर। मैंने बोला कैरेक्टर का नाम क्या है? बोला मनिया सुरवे। तो मनिया भी का महाराष्ट्र मेरे जहन में मुखड़ा आया, आला रे आला मनिया आला, because the way he's coming, and that is not something about this आला word is used time and again, but depends how you use it. और मुझे लगता है it is apt for मनिया's character। जो पिक्चर आप देखेंगे तो नजर आएगा कि इससे apt word नहीं आ सकता है for मनिया। when he comes, whenever he enters, वो गाना जब बजता है आला रे आला मनिया आला, it really makes, in fact ये गाना भी इतना अभी रिलीज हुआ है, and the amount of people who started humming this song, catching this word आला रे आला मनिया आला is amazing. John, good evening. This is Lipika. How you are doing? Good, Lipika. Where are you? Idhar. You look, your sexy peppy number makes you look very sexy. You've done a very good job. Can we call this John ka item number? I think it's very crucial to the film. I give credit to this song to Mr. Anu Malik. Thank you. I think he's done a great job. Thank you. And I think this is my life's number. Manya Ala Re Ala is my life number. Give it to everybody. It's my lifeline. I enjoy this song. We had a lot of fun dancing. One special mention before we continue is this guy sitting here on my right, Siddhant Kapoor. He's another future superstar of tomorrow. Yes, you're up for Siddhant. Thank you so much. He's absolutely brilliant. He plays Gyancho in the film. Performance is outstanding. And after this film, mark my words, we'll have another star. Yeah, Siddhant, will you give a tough competition to Shakti Kapoor? We come from different spaces. मेरे डैडी का जो वो टाइम पे आओ ललिता वो सब बहुत चलता था। तो आप क्या कहोगे? भाऊ आओ
But this film is very close to me. ये बहुत बहुत करीब है. Sanjay Gupta sir has given me a very big opportunity to work with इतने बड़े बड़े कलाकार हैं. John Abraham, Anil Kapoor, Manoj Bajpayee, Anuji music director. He's the music director who I've looked up to and I've known him since childhood. He's like an idol because I know my music also quite well and he's outstanding. But to be with these guys on the same platform, you learn so much. And John has gone out of the way to just help me out and give me so much of confidence. And half of my performance, I will give it to these guys. You know, all my seniors in the. Thank you so much. You know, yeah. अच्छा, तो अन्नू जी से एक सवाल है कि हमारे होस्ट और दोस्त ने कहा कि मान्या सुरवा का गैंग के आ रहे हैं, तो अन्नू जी इसमें आप बंदूक भी उठाने वाले हैं क्या? मैं आपका सवाल नहीं समझा, क्या कह रही हैं आप? इन्होंने कहा मान्या सुरवा का गैंग से लोग आ रहे हैं, तो आप इसमें बंदूक भी उठाने वाले हैं संगीत की? हाँ, संगीत की। बस देखिए, ये गाना जो इतना भी बना है और इतना जो पसंद आ रहा है लोगों को, वाकई ये बड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन था फ्रॉम संजय गुप्ता, बिकॉज इट्स अ फिल्म दैट रिक्वायर्ड अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक, डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड. बट जो मैंने जॉन की परफॉर्मेंस देखी फिल्म में, एज ही सेज अबाउट सिद्धांत एंड एवरीबडी, वेदर सोनू सूद, मनोज बाजपेयी, द वे संजय गुप्ता हैज मेड दिस फिल्म, आई थिंक इट्स अमेजिंग. जब ये गाना बना है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सीन्स दैट केम इन फ्रंट ऑफ मी, द वे संजय गुप्ता शॉट इट. बल्कि मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो जॉन ने मेरी तारीफ की है, तो मेरे जहन में तो एक शायरी आ रही है, मैं बताना चाहता हूँ. आप सुनने को तैयार है कि नहीं सब लोग? आप लोग बस वो तो चाहिए ही चाहिए कि आंखों में आग, आंखों में आग तन फौलादी, आंखों में आग तन फौलादी, मन बड़ा मतवाला, कभी खेलता है ये औजारों से, कभी पढ़ता है मधुशाला. जय महाराष्ट्र मुंबई वालों, मांड्या आला रे आला. दिस इज राइट नाउ मेड, अभी अभी बनी है. एंड आई वांट एवरीबॉडी क्लैप ऑन दिस बुखड़ा अगेन. एवरीवन हैंड्स अप प्लीज एवरीबॉडी. अगर आपने संगीत की मुहिम हमने उठाई है, तो आग लगी है, धुआं उठा है, इश्क मोहब्बत वाला. किसने मेरी जान चुरा ली, किसने मार डाला, डडान डडान डडान, आला रे आला, मान्या आला, अखी मुंबई में अपन का बोल पाला. आला रे आला, मान्या आला, अखी मुंबई में अपन का बोल बाला. जरा जोर से ताली बजाइए. जॉन, अभी ये लेबर डे पे रिलीज हो रहा है मूवी. आई थिंक पहली बार आपकी मूवी जो मुंबई महाराष्ट्र डे पे रिलीज हो रहा है. हर जगह से अभी May 3 को रिलीज हो रही है. अच्छा, May 3 फ्राइडे है, फ्राइडे को रिलीज हो रही है. ओके. फिर भी अभी मतलब रिलीज की बहुत नज़दीक है, तो लेकिन आप कितने एक्साइटेड है? और बहुत जगह से बहुत तरह से प्रमोशन हो रहा है, जैसे कि अभी लास्ट में आपने जो मुलुंड में किया था, एक अलग तरह से एक्शन सीक्वेंस, इस तरह से आप ट्रैक लेके एंट्री किया, तो और आगे क्या क्या करने वाले अब? जी, ये पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे स्टूडियोज़ के साथ काम किया है, लेकिन बालाजी को क्रेडिट देना चाहता हूँ. बालाजी और उनकी पूरी टीम, आउटस्टैंडिंग बालाजी, आउटस्टैंडिंग. द वे दे हैव पुट एवरीथिंग टुगेदर, जिस तरीके से उन्होंने इस फिल्म को प्रमोट किया है, आई थिंक इट्स आउटस्टैंडिंग. इस परफॉर्मेंस के बाद शायद हम लोग दिल्ली में परफॉर्म करेंगे, उसके बाद दुबई में विल परफॉर्म इन दुबई एज वेल. और हम लोग बहुत ही प्राउड है, फिल्म को हमने देखी है. वी लव द फिल्म, वी एंजॉयड इट, और हम इसीलिए बाहर आ रहे हैं क्योंकि हम बहुत ही खुश हैं और ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं कि एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है. तो शायद मैं प्रमोशन नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम इसीलिए आपके सामने आ रहे हैं क्योंकि वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म. आप देखें. I think we should say 3 cheers for Ekta Kapoor also. Please, everybody clap for her. Where is she? She's not. I can't see her. Yeah. I can't see Sanjay Gupta also. पता नहीं कहाँ है हमारे stars. Hi, this is Zuhair. Anu ji, to your right. Yeah. Anu ji, आपके म्यूजिक में जंजीर का कुछ झलक नजर आ रही है क्या? कुछ देखिए, I would say that when we have retro kind of feel, it goes back to the masters. And I remember जब बबली बदमाश हुआ तो Sanjay Gupta told me, Anu, it is R.D. Burman meets Feroz Khan meets Anu Malik. I would say agar it's a compliment because to come out with, we can't even compare ourselves to the great masters. आप जिस फिल्मों का नाम ले रहे हैं, लेकिन कोशिश की है. Well, John, to your right. Well, John, you're looking absolutely great and really great with your washboard apps in your poster. So एक के बाद है कि negative roles क्या कुछ करना चाह रहे हैं? जी,
अक्सर जब भी मैं नेगेटिव करता हूँ फिल्म चलती है. लास्ट टाइम पॉजिटिव किया नहीं चली. तो आई एम वेरी हैप्पी. मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ. आई लव नेगेटिव रोल्स बिकॉज आई थिंक नॉर्मल इज बोरिंग. कोई भी हीरो प्ले कर सकता है. आई थिंक टू डू नेगेटिव हैज़ अ सर्टेन एज. एंड अगेन आई से आई गिव क्रेडिट टू संजय गुप्ता. इस फिल्म में एक बात बहुत क्लियर है. हम सारे यहाँ पे गैंगस्टर्स हैं और गैंगस्टर्स को हमने ग्लोरीफाई नहीं किया है. वी मेड श्योर दैट वी शोन गैंगस्टर्स लाइक गैंगस्टर्स. और जो स्टोरी है, जो डॉक्यूमेंट हमने किया है, वी ट्राइड टू स्टिक एज क्लोज टू द फैक्ट्स एज पॉसिबल. जॉन, दिस इज निकिता फ्रॉम न्यूज़ 24. आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि आपने यहाँ इस मूवी में 3 आइटम सॉन्ग्स है, कौन से आइटम के साथ काम करने को सबसे ज़्यादा मजा है? जी, पहले तो इस फिल्म में एक ही आइटम गाना है, वो बबली बदमाश है. सनी लियोन का इस फिल्म में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. और इस फिल्म में शेख मुनीर का जो कैरेक्टर है तुषार कपूर, तुषार और मैं कहीं पे जाते हैं जहाँ पे हम सनी लियोन से मिलते हैं. तो शायद मैं कहना चाहता हूँ कि वो फिल्म का बहुत इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है. कोई गिर गया यहाँ पे सनी लियोन का नाम सुन के. अच्छा, आर यू ओके सर? अच्छा, प्रथमेश के डैडी गिर गए ना. दूसरा जो गाना है वो मनिया आला रे आला है. आई थिंक दैट्स द एंथम ऑफ द फिल्म. जब भी मनिया सुरवे की जो गैंग है वो बढ़ती जा रही है, आई थिंक दिस सॉन्ग कम्स इन टू प्ले. और एक और सॉन्ग है ए मनिया. उसके अलावा आई थिंक आइटम सॉन्ग तो एक ही है, इनको क्रेडिट देना चाहता हूँ, बबली बदमाश. एंड आई थिंक इट्स अ सुपर हिट सॉन्ग और प्रियंका has done a fantabulous job. तो क्या जॉन ने एक सेकंड जॉन ने क्या मराठी सीख ली इस फिल्म में? मराठी हमने थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया है क्योंकि मनिया सुरवे का कैरेक्टर है. और ये फिल्म मेरी पहली फिल्म होगी जो पैन इंडिया रिलीज होगी. लेकिन इसमें क्योंकि इसका कैरेक्टर महाराष्ट्रन है, थोड़ा बहुत उसने मराठी बोला है फिल्म में. लेकिन ऑफ कोर्स इट्स अ हिंदी फिल्म. तो जब भी वो अपने लव इंटरेस्ट को लेके जाता है उसके माँ के पास, तो वो बोलता है आई मी सांगितलं होतं हे विद्या. तो उसका भाई जब ये तड़ीबार हो जाता है तभी वो बोलता है दादा तू इकड़े का साथ, तू तो शहर से तड़ीबार है. तो थोड़ा बहुत जो मराठी कलोकियली हमने इस्तेमाल किया है, इसीलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि द बेसिक कैरेक्टर इज महाराष्ट्रन और उसको हमने जहन में रख के ये परफॉर्म किया है. जॉन, व्हाइट एंड व्हाइट ऑलरेडी एक स्टाइल स्टेटमेंट है बॉलीवुड में. आर यू ट्राइंग टू शिफ्ट द फोकस टू ब्लैक एंड ब्लैक नाउ? No, I think I hope this becomes a style statement. I hope these glasses, I hope this shirt with lapels, I hope this style becomes a style statement, and I think it will once the film releases. Credit to our designer Kunal Rawal. He's not here. Kunal काफी घूमता फिरता है, पार्टी करता है रात को, लेकिन he makes good clothes also. Yeah. Good evening. Yeah, this is Vijay Shankar here. You can see me. Yeah, this is for Siddhant. What aspect have you learned from your father? Do you look at him as your inspiration? And do you also aspire to become another villain, or what else do you look forward to? He's done 750 films plus, so I guess that's the biggest inspiration in my house. कि घर पे वो तो कभी घर पे रहते नहीं है, 40-40 घंटा नॉन-स्टॉप काम करते. एक दौर था जब चेन्नई से हैदराबाद और मुंबई के अराउंड 6-7 months वही. तो आई हैव सीन हिम डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड व्हेन इट कम्स टू अडेप्टिंग द विलेनस कैरेक्टर फ्रॉम हिम, आज का दौर, अभी जो दौर सिनेमा का दौर है वो अलग है. विलेन हीरो कम चलते, कैरेक्टर्स ज़्यादा चलते. there's not hero, heroine, villain and all. As John mentioned, he prefers to do more villainous characters. But such a good-looking guy doing villainous character. You see the kind of scale the Indian cinema is going towards now, It's open to everything, I believe, and I think it's a great time for cinema. Yeah. जॉन, जो दौर दिखाया जा रहा है, संजय गुप्ता जी ने दिखाया था, अक्सर उस समय जो विलन होते थे वो वाइट कलर के ड्रेस में होते थे. तो क्या आपने कुछ स्पेशली ब्लैक पहना या कुछ खास वजह थी?
नहीं, काफ़ी जगह पे मैंने कुछ पहना भी नहीं है, वो वहाँ पे वीव चेंज दैट। ऐसी कोई बात नहीं है। पहले विलन्स टाइपकास्ट होते थे। आई थिंक टुडे विलन्स आर नॉट विलन्स, दे आर एंटी हीरोज। और हर एक विलन की भी कहानी होती है। पहले हीरो की कहानी होती थी, द विलन वॉज जस्ट एन एड ऑन। आई थिंक टाइम्स हैव चेंज्ड, वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, दैट्स इट। जॉन, आपसे जानना चाहेंगे, आप तक जो भी फिल्में आपने की हैं, अगर शूटर घोटाला की बात करते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है। ये इससे आई होप यू टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट। एक झूठा ही सही भी आपने फिल्म की थी ऑन योर इंस्टिंक्ट कि हाँ यू हैव टेकन द रिस्क इवन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा क्या खास था शूटर घोटाला में जो आपने हाँ कहा, क्योंकि ये भी एक रिस्क ही है, क्योंकि आपकी इमेज उस तरह की कभी रही नहीं है। जी, आई लाइक डूइंग थिंग्स दैट आर डिफरेंट। आई वॉज जब भी मैंने मन्या सुरवे की स्टोरी जब भी सुनी, इंग्लिश में एक कहावत है, फैक्ट इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। और मन्या सुरवे की जो कहानी है इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कहानी के बारे में तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन व्हेन आई हर्ड द स्टोरी, संजय गुप्ता के हाथ में सिर्फ एक न्यूज़पेपर कटिंग था जिसमें लिखा था मन्या सुरवे ब्रिंग्स बॉम्बे पुलिस टू इट्स नीज। वो पढ़ के मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हो गया, इंट्रीग्ड हो गया। आई थॉट इट वाज अ डिफरेंट कैरेक्टर। और संजय गुप्ता के साथ मैंने जिंदा करा था इसके पहले। जिंदा वाज वन ऑफ माय बेस्ट परफॉर्मेंसेस, तो आई वाज कॉन्फिडेंट दैट दिस विल डेफिनेटली बी अ ग्रेट परफॉर्मेंस। और अनु जी जिस तरीके से उन्होंने म्यूज़िक दिया, जिस तरीके से हमारे जो कास्ट है सब साथ में, आई थिंक वी ऑल परफॉर्म्ड वेरी वेल टुगेदर। तो ये मेरे हिसाब से कोई रिस्क नहीं है। दिस इज़ द री इंट्रोडक्शन ऑफ जॉन अब्राहम। आई थिंक मन्या सुरवे के साथ, जैसे मैंने कहा पहले, जॉन अब्राहम को छोड़ के आया हूँ मैं, अभी यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, एक नई शुरुआत। एंड आई होप पीपल सी दिस इन अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइट। Hello, John. How much of research did you do on your part for the role? I mean, did you go through the book, or was it the director's? No, I have both. I've been through the book, and I have studied, and I've heard what Sanjay Gupta had to say. We met people around who've been involved with the encounter, and I've got all my research material from there. We worked very hard on this film. So I would honestly say this is probably the most honest performance of not only my life. I think each of our characters has been very well etched out, and we've all worked very hard, very hard. Manya Surve also was said to be very stylish, you know. So what style statements will we be seeing in the film? Manya Surve was a Mumbai Shri, he was a Bombay Shri, he was a bodybuilder. So he used to work out. So the physicality matched a lot between Manya Surve and me. He was a very educated guy. उसको इंजीनियर बनना था लाइफ में, बस उसको माँ को सपोर्ट करना था। आई गेस इवन आई एम एडुकेटेड। वो एक नई दुनिया में आ गया, मेरे लिए फिल्म्स एक नई दुनिया थी उस टाइम पे। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर वेरी सिमिलर, यू नो। सो आई जस्ट ड्रू अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन आउट ऑफ हिम इन अ वे, एंड आई लिव्ड हिज लाइफ, हिज कैरेक्टर एवरी डे फॉर एटलीस्ट 1.5 years टू प्ले दिस। आज मैं वैसे बैठा हूँ, बट व्हेन यू सी द फिल्म, इट्स I am not John Abraham. I'm just Manya Surve. That's it. After doing this film, John, what take do you have about the Mumbai police? Well, I honestly respect Mumbai police a lot. I am very pro Mumbai police, and I think they've done a fabulous job for our city. It's sad when the political system puts them in a corner, and they have to bow down to sometimes controversies. But I really am a big supporter of the Mumbai police. But we have shown an aspect of Bombay police. उस वक्त पे वो Bombay police थी. We are showing an aspect of Bombay police that that did exist, and I think Anil Kapoor Saab has played that character of Afaq Bagran very well. And you'll meet him in a future press conference that he's coming to with Hussain Zaidi Saab. So you all will be informed about it.
All right, this will be the last question. Good evening to all. अनुज जी, आला रे आला गीत आपने मिका से भी गवा लिया, लेकिन आज के दिन आपके लिए परीक्षा है, अगर आप जॉन से मणिया सुरवे से ये गाना सिखाते हुए गवा दें। ठीक है, ठीक है, 100% होगा सर। साथ में ऊंची है बिल्डिंग सर। ओके, अनु जी क्या हुआ? मैं गाना सिखाऊं ना? पहले गाना सिखाने में काफी टाइम जाएगा ना। आला रे आला, आला रे आला, इतना सुरीला बोला, ताली बजाओ, इतना अच्छा बोला उसे। मानिया आला, मानिया आला, मानिया आला, अखी मुंबई में अपन का बोल बाला। और क्या चाहोगे यार, कमाल है सर। और सीटी बजाओ यार, इतना सुर में गाया। अनु जी सर, इतने बड़े महफिल जमी है, सबने ऊंची हुई बिल्डिंग सुनना चाहते, तो आपकी लाइन से 2 लाइन प्लीज, ऊंची है बिल्डिंग। भैया आज सिर्फ शूटर और वडाला की बात होगी, ये तो आपने मेरा पूरा शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू ओनली सिंग, आग लगी है धुआं उठा है इश्क मोहब्बत वाला, किसने मेरी जान चुरा ली, किसने मार डाला। आला रे आला, आला रे आला, आला रे आला, मानिया आला, अखी मुंबई में अपन का बोल बाला। अरे आला, मानिया आला, अखी मुंबई में अपन का बोल बाला। I think it's a brilliant song. Thank you so much, outstanding. everybody. Thank you. All right, ladies and gentlemen, let's Thank you guys. for John, Anu Malik, and Siddharth Kapoor. Let's cheer for them. Thank you. You're amazing, bro. जॉन सोलो, मानिया सुरवे स्टाइल, जॉन भाई, मानिया सुरवे स्टाइल, जॉन भाई, जॉन भाई, जॉन भाई सुरवे स्टाइल, जॉन भाई, जॉन भाई, जॉन भाई, जॉन भाई, जॉन भाई, जॉन भाई, जॉन। अरे यार कैमरा बोलेगा, अरे पीछे लेना, ये मोबाइल बोल लिया अंदर। पार्टी है जरा। जॉन सामने, जॉन भाई, काफ़ी नहीं, बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। काफ़ी एक छोटा लफ्ज़ है, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत सही लफ्ज़ है, क्योंकि अभी जो रिएक्शन मुझे पब्लिक से मिल रहा है फॉर बबली बदमाश, और अभी जो आला रे आला का जो रिएक्शन हुआ, बल्कि मैं इतना खुश हुआ हूँ, जॉन अब्राहम साहब ने ये बात बोली कि मैंने बहुत गाने किए, मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट गाना है। और मैं समझता हूँ ये कॉम्प्लीमेंट अनिल कपूर ने सबसे पहले दिया था, जब इन्होंने पहली बार गाना सुना था अनिल कपूर ने, तो अनिल कपूर ने जॉन को बोला, जब तेज़ाब आई थी तो मैं एक एक्टर से स्टार बन गया था संगीत के बाद, और मैं समझता हूँ तू एक एक्टर है, अब तू स्टार बन जाएगा आफ्टर आला रे आला। आई थिंक क्रेडिट गोज टू संजय गुप्ता, एकता कपूर जिन्होंने फिल्म बनाई है, एंड संजय गुप्ता जिन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आई वांट अनु मलिक फॉर दिस, एंड आई थिंक आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस। बहुत अच्छा लगता है, बट दिस शो द पीपल आर वेटिंग फॉर द पीपल आर वेटिंग फॉर द फिल्म शूटर वडाला। देखो जिस पहला नोट बजाना ता ता रा ता रा रा री रा रा, तो उसी वक्त जो पब्लिक ने सीटियाँ बजाई हैं, सी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप पब्लिक को फोर्स नहीं करते थे सीटी बजाने के लिए, उनके दिल से निकलना चाहिए। ताली बजना पब्लिक के अंदर से निकलता है, और मुझे लगता है ये गाने उनके दिल में आ चुके हैं, और उन्होंने ठान लिया है शूटर वडाला देखने के लिए, विच आई फील म्यूजिक की रिएक्शन से लग रहा है। सर अगर बात करें जो 19 जो 70s के गाने थे, जो 60s वो फिर से एक बार आ रहे हैं और काफ़ी
अप्रिशिएट भी की गई। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि वो जो साउंड है वो मुझे इसलिए अप्रोच किया संजय गुप्ता साहब ने, बोला कि आई वांट दैट टिपिकल साउंड ऑफ अनु मलिक। और मैं 16-17 साल की उम्र थी मैं जब 80s में हम लोग आए तो 18 साल के थे हम लोग। उस वक्त हम सुनते थे बड़े बड़े संगीतकारों को और हम उनसे सीखते थे। और जब 90s का हमारा दौर आया तो हमने बहुत मेहनत की, लेकिन जब फिलहाल जब मैंने नोटिस किया कि मैनी पीपल लाइक दैट काइंड ऑफ म्यूजिक और अभी फिल्में भी ऐसे बन रही हैं, बल्कि मैंने इसमें कंटेम्प्रेरी साउंड भी रखा है, उसको रखते हुए मैंने ये ऐसे गाने बनाए हैं कि वो मेलोडी भी बरकरार रहे और अनु मलिक का स्टाइल ब्रांड ऑफ म्यूजिक बरकरार रहे। और इन फ्यूचर में जिस तरह की आप हम मान सकते हैं कि क्रेज आ रहा है हर जगह आपके गानों, इन फ्यूचर में क्या क्या प्रोजेक्ट? अभी सबसे पहले मुझे अप्रोच किया फिरोज नडेडवाला की बेस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने, वहाँ मैं म्यूज़िक दे रहा हूँ। बॉर्डर 2 की बातें चल रही हैं, JB दत्ता साहब शुरू कर रहे हैं और इंडस्ट्री में एक चहल पहल शुरू हुई है एज फार एज माई म्यूजिक इज़ कंसर्न। निर्माता निर्देशक बात कर रहे हैं कि अनु मलिक के गाने चल रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, अप्रोच करना चाहते हैं और मैं उनके साथ काम भी करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है।